sir. And first of all, I thank God and praise God for this wonderful opportunity to share some information which is need of the hour for minority community student. Many times we do not get the benefits because we do not know, and we curse. So let us not curse, let us bless and know the benefits and avail the benefits, not for ourselves, but for others. Because if you practically speak to me, this is none of the business of a lawyer. Neither I am entitled under this scheme by any means at any stretch of imagination. But I think that our community should be benefited because this is for our community, and that's the burden he has given. As you go and spell the gospel, go and spell this good news of minority scholarship. Many people who are entitled should get and should not be deprived of this benefit which is given by the government of India. So before I start, I would like to make two clarifications because it is a movement. It is not a webinar, it is a webinar component. And I am going to share the whole PPT with you, the entire PPT with you. You go and with your own mobile, smartphone, you do this workshop in your churches, in your area, so that everybody will know. So if I keep the PPT to you and ask you to write, it may not solve the purpose because within this 1.5 hours, 2 hours. So I'll give you the entire PPT where links are there. And if in case you have any doubt, you can still further contact Brother Amit or me. But whole purpose is that you continue with this mission, that will spread this news about the minority scholarship. And in fact, before 2018, I was actively involved with EFI in the state of Orissa and some other states to fill up the form. Those days, physical form fill-ups were there. Today is online form. So it is more easier. If God has given you a smartphone and you will ask you how much you used for me, one is for preaching, another is for social evangelism, social work. So if you do not fill up the form, God will ask you, why didn't you fill up a form? So it is obviously a duty on our part that we must educate our youth so that they must also come to the field and join with the church and the congregation so that people who cannot fill up the form, their form can be filled up. And without our intervention, they will give money for continuance of the education of the children. So we'll now start with the screen. So before you start, just would like to request you, it should be bilingual, will be very helpful for the people. Yeah, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो हम bilingual बोलूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम। Yes sir, will be grateful sir. Thank you so much. ठीक है, हाँ मैं bilingual करूंगा, कोई प्रॉब्लम। तो आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिए, मेरा बात है, ताकि हम उसका जवाब देंगे। पीपीटी आपको मिल जाएगा पूरा, जैसे आपको दिखा रहे हैं पूरा मिल जाएगा, लिखने का कोई जरूरत। पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आता है उसको याद कीजिए, अगर जरूरत है तो आप हैंड्स अप कीजिए और चैट कीजिए ताकि हम लोग वहीं रुक के आपको आइडिया क्लैरिफिकेशन दें। So again, I thank Brother Vijay Lal, my very good and old friend. Together we have been for the last 20 years in the ministry. Though he's in the spiritual ministry, I'm the legal ministry, but work together and sometimes because we come to a crossroad sometimes. And I'm happy to be a part of this program where he has invited me. And I wish that many of us will be trained in this program so that you will also become a resource person. It is not Vididas, it is you, and God will make you, and you take the resource from us and be a resource person for your community, for your church. And with this word, I would like to go to the next slide. If you talk about कि हम माइनॉरिटी बोलने से क्या समझते हैं, हम ये बोलते हैं माइनॉरिटी मतलब क्रिश्चियन है, नहीं, माइनॉरिटी हमसे बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, पेरिस है। जब हम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो हमको कम से कम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि माइनॉरिटी कौन होते हैं। तो इस देश में पहले जब भारत स्वाधीन हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी जो है, इनको बोला जाता था माइनॉरिटी। कोई कानून नहीं था, समझा जाता था। पहला बार 1992 में एक कानून आया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जहां सेक्शन 2C में बताया कि माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीस, ये लोग पहले नाम नहीं लिखा था, कानून नहीं था, लेकिन समझा जाता था और लोगों को बेनिफिट भी मिलता था। और 2012 में अगेन इसमें अमेंडमेंट लाने के बाद उसमें जो जैन को भी ऐड कर दिया। नाउ माइनॉरिटी मींस मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन। इसमें जैन नहीं है, जैन आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये जितना धर्म है ये माइनॉरिटी है। अब 92 से 2001 तक, 92 से 2001 तक
इसी में चलता है कि हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन, हर सिख, हर बुद्धिस्ट और पारसीज जो है ये सारे जो है माइनॉरिटी है और सारे बेनिफिट भी ले रहे थे। तो 2001 में 2001 इन द ईयर 2001 मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे 11 जज की बेंच था, 11 जज बेंच था। इट वाज क्वेश्चन, द कोर्ट अपने आप को क्वेश्चन किया कि कैन सिख बी ए माइनॉरिटी इन पंजाब, पंजाब में क्या एक सिख माइनॉरिटी हो सकता है? कैन ए क्रिश्चियन बी माइनॉरिटी इन मिजोरम? कैन ए मुस्लिम बी माइनॉरिटी इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर दोस डेज? क्योंकि वो तो मेजॉरिटी है उस स्टेट पे। तो नाउ द 1992 Act was interpreted and the court in TMA Pai versus State of Karnataka 11 bench judgment में एक क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है ये जो धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी अभी जैन है, ये माइनॉरिटी तो है, लेकिन जिस स्टेट में है उस स्टेट में उनका अगर स्ट्रेंथ 50% से कम है तभी वो माइनॉरिटी होगा। सपोज इन पर्टिकुलर स्टेट लाइक मिजोरम, the percentage of Christian is 90% or 80%, so they cannot be minority. But if there is a percentage less than 50%, they will be construed as minority in terms of the decision taken by the honorable High Court. So you should be very clarified that minority में मतलब ये नहीं कि हर कोई मुस्लिम क्रिश्चियन, लेकिन जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट पे, तो स्टेट में अगर आप 50% से आपका परसेंटेज कम है सेंसस रिपोर्ट का मुताबिक, then you are minority and you are eligible for benefits given by the government. अगर कोई मिजोरम का लड़का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप डालता है तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वह 50% से ज्यादा है। लेकिन एक सवाल उठता है, कैन ए हिंदू बी माइनॉरिटी इन मिजोरम और पंजाब और कश्मीर? दिस मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड इंटरप्रिटेशन वाज मेड कि हिंदू चाहे 50% कम है, 1% है, दे कैनॉट बी held as the minority because the law do not permit, because the National Minority Commission Act stipulate under section 2C that Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi, now Jain. So since the name of Jain Hindu is not here, even if they are less than 50%, they will not be even in other states. So that's a very good clarification. Who is a minority? 50% से नीचे होना चाहिए, इस कानून का अंदर उसका नाम होना चाहिए। जिस धर्म का इस कानून का अंदर नाम नहीं है वो 50% से नीचे होने से भी वो कायम है। I think I have clarified the basic concept of this. We go to the next slide. Yes, there is a question of somebody has put a question. I'll clarify that. This is, we are now National Minority Commission, the National Minority Scholarship. There are state scholarship in addition to the National Minority Scholarship. There are different states, they have different scholarship. And like Orissa, we have the Prerana scheme. In other states also, they have different schemes. But you should remember that if you avail the state minority scholarship, you cannot take the National Minority Scholarship. If you take National Minority Scholarship, you cannot take the state minority scholarship. Either one you should take. But the principle is same for all. Principle is same for all, that whether it is a state or a national, the religion part will be dealt under the section 2A of the National Minority Commission Act. Second thing, the benefits as stipulated by state, वो state के लिए लागू होगा, and the national जो है national में होगा। लेकिन almost जो है procedure formalities are almost same, only रुपया में थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, ज्यादा कोई खास नहीं, but थोड़ा बहुत है। The minority scholarship जो है basically object है कि to ensure कि जो minority बच्चे हैं, जो students who are studying in minority community in the schools, they should get the benefit. So they should continue. Basically, minority is understood with all the SC, ST, scheduled caste, whatever may be, they are downtrodden, Dalit hai, and they have been deprived from their basic, because now the right to education is a fundamental right under Article 21A has been amended. So what is necessary is that all students should be given the benefit to, because the STs are giving benefit, scheduled caste are giving benefit. Now you come back to Christian. Now for your clarification of the doubt, a Christian who converts to scheduled tribe, he does not lose his tribe status. He continues to get tribe. So
he can take the benefit under this scheme as a minority, Christian minority, or he can go to scheduled tribe minority scholarship, scheduled tribe scholarship. There also he can take. So what is to be seen, which is more? जो ज्यादा है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे. तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो कुछ जब क्रिश्चियन है जो अपना धर्म परिवर्तन किए हैं लेकिन अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो चेंज नहीं किए हैं, उनके लिए ये लागू नहीं होगा. फर्स्ट दे हैव टू चेंज द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, देन ओनली दे विल बी एंटाइटल्ड, बिकॉज योर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड योर रिलीजन हैज टू बी सर्टिफाइड that you belong to a minority community. So therefore scheduled caste Christian Hindu whenever he converts to Muslim or Christian or any of the minority community religion, so they lose their scheduled caste status. So therefore as a scheduled caste they will not benefit the scheduled caste scholarship, but here they can get the minority scholarship provided they have mentioned their name in the census report that they are Christian, in the school admission report that they are Christians, and in the whatever the document government record is there or the church record, you are Christian. So these are the three things you have to distinguish, that your religion has to be clarified by you by documentary evidence of the church as well as from the government. And the object of this benefit is actually basically threefold. It is not only giving the school children the benefit, it is divided into three parts. Pre-matric scholarship, this is up to class 5 level. Then post-matric scholarship is from class 6 to class 10. And merit cum scholarship is basically for the professional courses, engineering, medical, lawyers, B.Ed, all these things. And the rate of scholarship is increased more in the merit cum means scholarship. I will discuss about it. Next slide. So the idea behind is that a child who reads in a school takes this scholarship and continues his education or her education till class 10. And then he takes the post-matric scholarship and continue plus 2 or any other course. And thereafter, if he or she is selected in any professional course like medical engineering, MBA and MA, so he or she will be entitled to get the merit cum means scholarship, so that as a professional will come out with the educational assistance, the scholarship given to the minority community by the government of India. And every year actually it comes in the month of May, and the last date is August. But this year, because of the corona and all the restrictions, so the result was declared, plus 2 results were declared late, metric board results were declared late. So therefore, the pre-matric scholarship has been fixed 15th of November, and post-matric and merit cum means scholarship is 31st of November. So please remember that a student shall be eligible for only one scholarship out of all the scholarships of the central government or state government, whether SC, ST, OBC or minority. And the department which is dealing is known as MoMA, M-O-M-A, Ministry of Minority Affairs, which has been created by the central government, by the Parliament of India, to look after the welfare of the minority community. Now, how can student apply online for the scholarship hosted by the national? So there are two major categories, as I already said: pre-matric, post-matric merit cum means scholarship. All these are online scheme, and any eligible student may apply for scholarship under any other scheme on the national scholarship portal. अगर पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है, मेरिट का मीन स्कॉलरशिप है, ये सारे ऑनलाइन है. नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है इसमें अवेलेबल है, उसका आईडी इसमें दिया है www.scholarship.gov.in. इस पे आप स्क्रीन में स्क्रैच मत कीजिए जो भाई कर रहे हैं, काइंडली इफ यू कैन नॉट हेल्प बट काइंडली डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज. नोट कीजिए, उनको आउट कर दीजिए मीटिंग से जो कर रहे हैं ना अमित भाई. Remove him from the meeting. Yes, sir. Yes, sir. Please remove.
this is very bad. You are coming to a free session of the awareness and you are creating problem for the resource person instead of. If you are not interested, you can just leave the meeting, but don't disturb, please. So please, whenever you get the PPT copy, you will get. Please give your email number to Brother Amit, and it will be sent to you. The PPT format, entire format. Anyway, so the www.scholarship.gov in. If you go there, you will get the entire thing there. Next slide. And first of all, that student must be studying in India. इससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि एक इंडिया के पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है और एक स्कॉलरशिप है जो इंडिया का बाहर का पढ़ने के लिए, जिसको बोलते हैं पढ़ो परदेश, गो एंड स्टडी आउटसाइड. पढ़ो परदेश means study outside. So study outside is foreign study. So for that, there is a separate scheme, and this I am dealing with the student who are studying in India. And various government guidelines are given how to apply. Now guideline schemes are available here. So I have given a screenshot here. You can just follow this screenshot and online register yourself. Next. So उसमें requirement है कि एक फाइनेंशियल कैटेगरी जो है माइनॉरिटी का कौन अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इज कंसर्न, जो माइनॉरिटी का पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 1 लाख. इफ इट इज फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कॉलेज की पढ़ाई है, फॉर दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख रुपीज. अगर ये मेरिट और मीन स्कॉलरशिप है तो 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, सभी कैटेगरी होना चाहिए. तो ये याद कीजिए कि एक बच्चे जो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन होना चाहिए या मुस्लिम होना चाहिए, जो भी माइनॉरिटी रिलीजन है. दूसरा बात है कि उनका पेरेंट्स का जो इनकम है वो जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते तो उसके हिसाब से जो अपर लिमिट है 1 लाख से नीचे होना चाहिए. पोस्ट मैट्रिक के तो 2 लाख से नीचे होना चाहिए. मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है तो 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए. और दूसरा चीज है कि जो स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट स्टडीड इन द स्कूल जो रिजल्ट है उसमें आपको 50% मार्क रहना चाहिए. जैसे आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं या 6 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 5 में आपका क्या मार्क था, अगर वो 50% होना चाहिए टू बी एलिजिबल. अगर आप क्लास 11 पे अप्लाई कर रहे तो 10th में 50% होना चाहिए. तो 3 चीज के लिए आप जरूर याद रखिएगा. आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपका मार्क 50% से ऊपर होना चाहिए, और आपका जो फाइनेंशियल अपर लिमिट है 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. तीसरा जो है सबसे बड़ा है कि एक परिवार से 2 व्यक्ति मिल सकते हैं इसको. 2 persons कैन अवेल दिस फॉर्म. 2 persons. इसका एक सिनॉप्सिस बनाए हम लोगों ने आपके लिए. तो यू जस्ट गो थ्रू द सिनॉप्सिस, इज वेरी क्लियर. रेट ऑफ स्कॉलरशिप, एडमिशन और ट्यूशन फीस, जो दोनों मिला के जो है इसका ऊपर आपको मिल रहा है. सो फॉर द रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज देयर फॉर क्लास 5 टू क्लास 6 टू क्लास 10 500 पर annum एंड हॉस्टलर फीस. उसका बाद ट्यूशन फीस जो है 350 रुपया, 350 रुपीज पर मंथ. सो दैट मीन्स 10 मंथ के लिए वो देते हैं. सो 10 मंथ और हॉस्टल फीस है तो वो एक्स्ट्रा देंगे. तो 350, दैट मीन्स आपका जो है 3,500 हो गया, और ऊपर से 5 रुपया जो एनुअल का एक होता है, और 1000 जो है आपका मेंटेनेंस है, डे मेंटेनेंस के, डे स्कॉलर के लिए. तो टोटल जो है आपको 5,000 रुपया मिलेगा. नीचे इसका सब्सक्राइब किए. अगर आप ये पोस्ट जो भी दूसरा कोर्स के लिए कर रहे हैं, ये नीचे लिखा है, डे स्कॉलर्स के लिए आपको मिलेगा 5,000, हॉस्टलर के लिए मिलेगा 10,000 रुपया. अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, इफ समवेयर द चाइल्ड इज स्टडीइंग, तो हॉस्टल्स का रिसिप्ट दीजिएगा. और बाकी आपको एक चीज याद दीजिएगा कि यू हैव टू गिव दैट annual report of the child and the admission fees of the school fee or the money receipt of the school taken by you. You have to submit those things. तो उसमें जो है डे स्कॉलर घर में पढ़ रहे हैं तो 5,000 मिलेगा एनुअली, और हॉस्टल में रहते 10,000 मिलेगा. ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक है. क्लास 11 एंड 12 जो है 7,000 पर annum
सब्जेक्ट टू एक्चुअल बोथ हॉस्टल एंड डे। और जो है आपका 11 और 12 के लिए ये 7,000 रुपया है, और जो आपका मैक्सिमम है उस वो है, और जो 7,000 whatever is highest that will be given to them. Admission course fees for technical and vocational courses of class 12th and class 11th and 12th for day scholars, that is 10,000 rupees, and admission and tuition fees for UG and PG is 3,000 rupees. This is in addition to the fees. This is the admission fees. For class 9 and 10, including the technical and vocational course, maintenance allowance will be 380 per month, and hosteler it will be 230. For courses other than the technical and professional courses at UG or PG level are 570 per month for hostelers and 300 rupees for the day scholars. For MPhil and PhD also, a small token amount of 1,200 and 550 per month per day. So this is the basic you can calculate. बाद में इसको आप calculate कर सकते हैं, and when you apply it will be online automatically. Next. मेरिट में मेरिट मींस स्कॉलरशिप जो है ये बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया कि हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, LLB, LLM, all these courses. Rate of scholarship is 20,000 per annum, subject to actual, whichever is less, both for hosteler and scholars. This is 20,000 रुपया जो है मिलेगा अनुअल, और मेंटेनेंस अलाउंस जो है 10,000 रुपया for hosteler, डे स्कॉलर्स के लिए 500 रुपया, and scholarship listed. ये जो full course fees is reimbursed for 85 listed institution. ये आप ध्यान से सुनिए, 85 लिस्टेड इंस्टीट्यूशन में मैं आपको भेज दूंगा, वो नेट पे भी है लेकिन मैं आपको भेज दूंगा फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसमें आज की डेट पे BTH है, BD है और MTH है। आपका थियोलॉजिकल एजुकेशन के लिए भी आपको इतना पैसा मिलेगा, जो भी आपका जो पोस्ट मैट्रिक में जो है उसका अंदर आपको मिलेगा। तो जो भी पोस्ट मैट्रिक जैसे हॉस्टल में BD वगैरह सब हॉस्टल में रहते हैं, तो ये सारी जो पैसा है ये जो कॉलेज जो है एफिलिएटेड है उनको मिलेगा। आप ये कोशिश कीजिए कि जब हम ओडिशा में स्टार्ट किए तो मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ये गवर्नमेंट का स्कीम में अटैच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो हम लोगों ने इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। अब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन किया, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, उनको ये पैसा मिलेगा, चाहे आप BD पढ़ रहे, BTH पढ़ रहे और MTH पढ़ रहे। इसके लिए भी स्कॉलरशिप है, और मैं आपको स्कीम दे दूंगा, जो लिस्ट है 85 स्कीम है उसका अंदर है, और इसका लास्ट डेट है 30/11/2020। अब बताइए कि माइनॉरिटी के लिए गवर्नमेंट इतना दे रहे हैं लेकिन हमारा बच्चे नहीं रहे, हम बोल रहे हैं हमारा पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं है। यहाँ है अब, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं सरामपुर गया था और बिशप कॉलेज गया था, यही बात हुआ था कि सर हमको क्यों नहीं मिलेगा। सो वी स्टार्टेड पुटिंग आवर रेजिस्टेंस बिफोर द गवर्नमेंट, व्हाई यू आर गिविंग फॉर मद्रासा, गिव फॉर दिस, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस गवर्नमेंट, दे हैव इंक्लूडेड MTH, BD and BTH in the scheme for last 3 years. So कम से कम हम आवाज बोलने से गवर्नमेंट जरूर देगा, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम इसका बेनिफिट ले रहे हैं, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो, बिरयानी खा के सो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो ऑनलाइन अप्लाई जो डेट है, क्लोजिंग डेट है, मैंने जैसे बताया आपको कि प्री मैट्रिक के लिए 15/11/2021, 15 नवंबर 2020, एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज ओपन टिल एथिके, एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी इज 30/11/2021। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरिट के लिए भी 30/11/2021। बट ये जो उसका आप डाल रहे हैं, जैसे व्हेन यू डू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आज के दिन पे आपको कुछ नहीं करने का है। ऑनलाइन वंस यू डू करेक्ट रजिस्ट्रेशन, और वो पासवर्ड और OTP आप हमेशा आपका पास रखिएगा कि वो वन टाइम होता है, सेकंड टाइम आपको फॉर्म नया भरना नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट रिन्यू, आपको रिन्यू करना है, सेकंड टाइम होता है। और
when you apply on 15/11/2021 और 30/11/2021 को जो भी आप स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उसका बाद वो नहीं लगा, वो डेट चला जाने के बाद। उसका बाद क्या है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करता है। You should remember, जब यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, wherever your child is studying, please ensure if they don't register, please ask them to get registered. It is their duty that they have to online register. जब वो online register करेगा, when you fill up the form, जब आप फॉर्म fill up करेंगे, ऑटोमेटिक उनका पास चला जाएगा ऑनलाइन, कहाँ के, स्कूल का पास चला जाएगा। हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल है या हेडमास्टर जो भी है, वो ऑनलाइन उसको वेरिफिकेशन करेगा, करके 15/12/2011 को मतलब दिसंबर 15 तक उन लोग वेरिफिकेशन करके गवर्नमेंट को भेज देगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है इसके स्क्रूटिनी करके भेज देगा डिपार्टमेंट को, और ये जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसका 31 मार्च से पहले पैसा आ जाता है। थोड़ा थोड़ा देर होता है क्योंकि यहाँ से शुरू लेट में होता है, बट बाई एनी मीन्स यू विल गेट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो व्हाट इज द नेसेसरी, पहले आपको एक काम करना है, यू हैव टू फिल अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म for whatever category, pre-matric है या post-matric और merit cum scholarship, and the dates are there, 15/11 है या 30/11 है, जो भी आपका कोर्स है। और उसका बाद प्लीज इंश्योर कि स्कूल जो है 15/12 तक ऑनलाइन, क्योंकि कभी कभी कुछ स्कूल अभी ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं तो खुल नहीं रहे अपना सिस्टम, वो आके एक्सपायर हो जाएगा। तो प्लीज इंश्योर, इंटीमेट योर स्कूल कि भाई अप्लाई हमने किया है, आपका 15/12 तक आपको वेरिफिकेशन करके भेजना है। प्लीज इंश्योर दैट माय नेम इज फॉरवर्डेड। थोड़ा सा क्योंकि स्कूल भी थोड़ा सो गए, उनको भी जगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप्स जो है टू बी फॉलोड। स्टेप 1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन करेंगे ऑनलाइन में। स्टेप 2 जो है लेवल 1 वेरिफिकेशन एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूट, जो आपको मैं बोला कि 15 दिसंबर के अंदर इंस्टीट्यूशन उसको वेरीफाई करके भेजेगा। स्टेप 3 जो है 2/3 जो है लेवल 2/3 वेरिफिकेशन एप्लीकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट मिनिस्ट्री। मैंने ये बताया कि इधर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर करेगा या स्टेट का वेलफेयर ऑफिसर करेगा, इसको वेरीफाई करके दे विल इन्फॉर्म द नेक्स्ट अथॉरिटी। बेनिफिशियरी रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अकाउंट वैलिडेशन बाय द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ PFMS आजकल किया गया, कोई भी गवर्नमेंट का कोई फायदा उठाते हैं, कोई फायदा ले रहे हैं, कोई बेनिफिट ले रहे हैं, उनको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको वैलिडेशन होना चाहिए। उसमें आधार नंबर भी रहेगा, आपका पैन कार्ड भी रहेगा फैमिली का, बच्चा अगर 18 साल से नीचे है, और ये जो है आपका अकाउंट को मनी ट्रांसफर हो जाए, कहीं नहीं जाए। तो देयरफॉर देयर हैज टू बी ए वैलिडेशन बाय द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कहीं आधार नंबर गलत है, पैन कार्ड नंबर गलत है, बैंक अकाउंट नंबर गलत है, या आपका नाम में टैली नहीं हो रहा है बैंक का, तो इसीलिए आपको सबसे पहले बताता हूँ, प्लीज वेरीफाई टुडे योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर स्कूल एडमिशन। अगर कुछ तालमेल नहीं हो रहा है, डिफरेंस है, उसको इमीडिएटली एफिडेविट देके आप जो है करेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद व्हेन यू फिल अप द फॉर्म, योर फॉर्म्स आर अपडेट। स्कूल का साथ से जाएगा, गवर्नमेंट का साथ में जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, वही पैन कार्ड तालमेल हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट सही है नहीं है, और आधार कार्ड सही है नहीं है, बाकी जो काम है वो तो स्कूल करके भेज दिया है। तो वहां से वैलिडेशन होने के बाद जो है एप्लीकेशन डुप्लीकेशन एंड मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। 2 कॉपी में मेरिट लिस्ट इसका जनरेट होगा, तापर पेमेंट फाइल जनरेशन होगा, वो ऑटोमेटिक ये सारी चीज होगा। स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट स्टेप 7 में जाएगा डायरेक्ट टू द बेनिफिट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT। ये जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अगर पहले कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, रिन्यू करना है। बट दोज हु आर फाइलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर देम रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। और इसमें स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम need to register on the portal as fresh applicant using the icon new registration at NSP portal, National Scholarship Portal, URL so and so, by providing accurate and correct information as per their document as per your document. तो इसमें मैंने लिंक दे दिया है, इसी तरह से आएगा, उसी हिसाब से आप फर्दर स्टेप करेंगे। उसमें स्टेप गाइडेंस भी दिया है, थोरोली पढ़ेंगे आप। ये नीचे उठने के after registration, the applicant will get a
unique application number and password as in SMS in the registered mobile. After getting the unique application number, the applicant can click on login for the detailed application form. For student may apply through the dedicated mobile app National Scholarship at the available at Google Play Store. So, when you do the registration, as said in the previous slide, you will be getting number, password also, and a unique application number. So, इसको आपको सेव करके रखना है और उसका अंदर जाके you need to fill up the form. ये स्कॉलरशिप रिन्यूअल अगर करेंगे, अगर फ्रेश वाला तो बता दिया. नाउ suppose somebody has done previously. Now for them, they will not go for the new application form. It will be renewal. On the home page, a new user can click on login option to get the drop down list which displays fresh and renewal for subsequent academic year. So अगर नया वाला है तो फ्रेश में डालेंगे, अगर पुराना वाला है तो रिन्यूअल में क्लिक करेंगे और ये प्रोसीजर जैसे मेंशन है इस हिसाब से करेंगे. वो गाइड किया है. मैंडेटरी प्रोविजन जो है उसको आपको फिलअप करना ही करना है. जो मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं. एकेडमिक ईयर 2021 के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट के लिए रजिस्टर करने के लिए फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय पेरेंट्स गार्डियंस ऑफ स्टूडेंट हु आर बिलो 18 इयर्स ओल्ड. अगर ऊपर से ज्यादा है तो वो खुद कर सकते हैं. इफ दे आर बिलो 18 इयर्स, देयर पेरेंट्स विल डू. पेरेंट्स विल गिव देयर बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर एंड आधार कार्ड. नेक्स्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है. एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट. तो व्हाट इज द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट? सपोज आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए, तो +2 आपका पास होना चाहिए. तो +2 सर्टिफिकेट प्लस बोर्ड सर्टिफिकेट जो काउंसिल का है, ये दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्री मैट्रिक ले रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, द लास्ट ईयर जो उसका रिजल्ट है, मार्कशीट, उसको आपको देना है. एंड इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आजकल तो ऑनलाइन में इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने से मिलता है. RI आके रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंस्पेक्ट करके इशू करते हैं, जिसमें आपका सैलरी का जो इनकम का वो क्वालिफाई करेगा. देन सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द community, like which religion you have and what is your age. All these things has to be given by the self attested. Students bank account number, IFSC code of the bank. For pre-matric scholarship scheme where students do not have their own bank account number, parents can provide their own bank account details. However, parents account number can only be used against scholarship application for maximum 2 children. For 2 children. Aadhaar number जो है जरूरी है. If Aadhaar number is not available, then bona fide student certificate from institution or school or Aadhaar enrollment ID and scanned copy of the bank passbook. अगर आपने आधार अप्लाई किया है तभी उसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेके फोटो करके देते हैं तभी वो हो जाएगा. If you have applied, not received also. So those who have not applied, they may apply, and even if it is not allotted, if the application scan copy can be also uploaded to get the benefit. Brief, institution. Brief for the brief instruction for filling up the online application form. Domicile state means state in which the students have their permanent address. अब ऐसा है कि आपको पास एक इशू आएगा. You are belonging to UP or Delhi or Bihar or Gujarat, or your child is studying in Delhi or somewhere else in Bengal. So now state domicile means कहाँ क्या देना पड़ेगा. Domicile state means state in which students have their permanent address. He may be temporarily going and studying somewhere. Students are required to provide their domicile state correctly as per the application ID allotted to them will be based on the domicile state.
The application ID will be also be used as login ID on the portal, and in future reference, once alerted, the student will not be allowed to change the domicile state under any circumstances. अगर आप कोई आज दिल्ली के आपने डोमिसाइल डाला, कल आप जाके उसको यूपी करेंगे, नहीं होगा। आपका बच्चा कहीं पे पढ़े उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन डोमिसाइल स्टेटस जो है आपका वही रहेगा, वो चेंज नहीं। Student needs to provide bona fide certificate in prescribed format if the student's domicile state is different from the state of institution the school he or she study. अगर बच्चा, जैसे मैं बोला कि चाइल्ड इज फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट, और बच्चा जो है वही स्टेट में जाके पढ़ रहा है, तो उसको आपको फिलअप करके देना। ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, उसका नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। और जो नाम देना है बच्चे का, प्रोवाइड नेम आज प्रिंटेड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर मैट्रिक, टॉप क्लास और MCM स्कॉलरशिप। प्रीफरेबली प्रोवाइड द नेम आज प्रिंटेड इन क्लास 10। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक का लेना है और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप का लेना है, सो यू हैव टू सी दैट बोर्ड और काउंसिल सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है उसी को देना। For student providing Aadhaar number to ensure that your name is correct in your Aadhaar card also. I have already said, पहले मैं बता चुका हूँ कि आधार कार्ड में आपका जो नाम है स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए, सर्टिफिकेट में होना चाहिए, और आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा मोबाइल नंबर भी इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। अगर ईमेल नहीं है तो आपको ईमेल करेक्ट बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ेगा और करेक्ट ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देना पड़ेगा विथ IFSC कोड, ब्रांच नेम, सारे डिटेल्स का साथ। नेक्स्ट, आज की जैसे बताया कि सारे चीज को यहाँ पे करेक्शन देगा। आधार नंबर, स्टूडेंट हु हैव आधार नंबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 12 डिजिट आधार नंबर। जो डिटेल्स है इसका, आधार नंबर है तो आधार नंबर 12 का उसको डालना पड़ेगा। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड विथ वन आधार नंबर, दोबारा नहीं हो सकता। हाउएवर if multiple application of the students are found in the system at a later stage, all his or her application are liable to be rejected. अगर दोबारा कर दिया आपने इसी आधार नंबर पे तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, एंटायर थिंग रिजेक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं कि 15 नवंबर को 2021 को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए है, और 30 नवंबर को जो है 2021 को पोस्ट मैट्रिक का है, 30 नवंबर 2021 को मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के लिए मैंने बताया। नाउ एक नया है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। डोंट थिंक इट इज फॉर मुस्लिम, इट इज फॉर ऑल माइनॉरिटी। इन द नेम ऑफ ऑनरेबल मौलाना आजाद दिस फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड, और इसमें दो किस्म की बेनिफिट है। एक है ग्रांट इन आर्ट टू एनजीओ को ग्रांट इन आर्ट देते हैं, दूसरा है स्कॉलरशिप टू द मेरिट गर्ल स्टूडेंट। पहले जो बोला कि मेरिट कम स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, दैट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, लेकिन ये जो है बेसिकली गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए है मेरिट कम मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन। और यहाँ पे ग्रांट इन आर्ट जो है दिया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, माइनॉरिटी के लिए दिया जाता है, स्पेशली हॉस्टल के लिए बनाने के लिए, जूनियर कॉलेज के लिए, प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए है। तो इसके लिए ग्रांट इन आर्ट गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख से लेके 30 लाख तक दिया जाता है। दैट इज 5 लाख to 30 लाख डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, उसका नंबर भी जो है आपको चेक करेंगे www.maef.nic.in अर्थात www.maulana azad educational foundation /nic.nic.in। इसमें जो है
कोई अगर स्कूल चला रहा है, कोई एनजीओ कोई हॉस्टल बना रहा है, तो उसके लिए 5 लाख से लेकर 30 लाख तक उसको ग्रांट इन मिल सकता है, प्रोवाइडेड ही क्वालिफाइज। एक सबसे बड़ा चीज है कि आपका जो सोसाइटी है उसमें माइनॉरिटी 50% से ज्यादा होना चाहिए, आपके रिलीजन क्रिश्चियन से। अगर मुस्लिम का है तो मुस्लिम का रिलीजन का। दूसरा चीज है, स्टूडेंट जो हो उस ऑर्गेनाइजेशन का है, स्कूल का है या हॉस्टल का है, 50% से ज्यादा जो है लड़की वुमेन गर्ल है, दे हैव टू बी मोर देन 50%। अगर ये दो चीज आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आप अप्लाई करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन उनका रिक्वायरमेंट है, आपका नाम पे लैंड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका 12 होना चाहिए और आप CSR रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये सारी चीज आपको जरूरत है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। और इसमें स्कॉलरशिप प्लीज रिमेंबर दैट पहला वाला जो है नेशनल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मेंशन, दैट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कंपाउंड प्रोफेशनल कोर्स, उसके लिए है बेसिकली। एंड इसमें अलाउंसेस कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे 9 और 10 में जो लड़की लोग पढ़ते हैं उनको 5,000 रुपीज करके 10,000 मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट पे 5,000। अगर 11-12 पढ़ते हैं तो उनको 6,000 मिलेगा। उसका मतलब क्लास 9 पे 5,000 मिलेगा और क्लास 10 में मिलेगा 5,000, क्लास 11 में मिलेगा 6,000, क्लास 12 में मिलेगा 6,000। इसमें आराम से मिल जाता है। कभी 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 हम लोग जब डालते नहीं तो मिलता नहीं है, लेकिन जब हम डालते हैं तो पक्का मिलता है जो डिजर्विंग ऑन मेरिट, ऑन मेरिट। नेक्स्ट। जैसे बोला ओनली गर्ल स्टूडेंट बिलोंग टू 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज आर एलिजिबल। और ये जो है क्लास 9 से +2 क्लास 12 तक है। और आपको उसी जो मौलाना आजाद साइट से जो मैंने दिया वहां पर लिंक है, उस पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। annual income of the student, of the parents and guardians from all sources should not exceed 2 lakhs. For Maulana Azad scholarship, the upper limit is 2 lakhs. Next. स्कूल से क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन होता है बच्चों का, और उसका बाद जैसे ऑपरेशन होता है, डॉक्यूमेंट अगर दूसरा लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है और उसको अटेस्टेड किया जाता है, प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ उसको वेरीफाई किया जाता है। इसका भी लास्ट डेट अभी जो है 31 अक्टूबर 2021 है, लेकिन एक टेंटेटिव है, वो वेबसाइट में यही दे रहे हैं, टेंटेटिव अभी आया नहीं। हो सकता है ये 31 अक्टूबर का बाद भी हो सकता है, लेकिन जो वेबसाइट में दिया है वही हमको दे रहे हैं कि ये टेंटेटिव लिखा है 31 अक्टूबर 2020। और जो स्कॉलरशिप इसमें है डायरेक्टली गर्ल्स का अकाउंट में, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट। दिस इज इसका बाद हम आपको लास्ट वाला इसमें दे रहे हैं कि पढ़ो परदेश में वाला। ये तो देश में पढ़ने के लिए, वो परदेश में पढ़ने के लिए, गो टू फॉरेन एंड स्टडी, पढ़ो परदेश। ये पढ़े परदेश किन के लिए? ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। और इसमें जो है एमफिल, पीएचडी, एमए, ये तीनों के लिए अगर करने जाते हैं आप तो उसको आप बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाता है एडमिशन के लिए, वहां से चिट्ठी आ जाता है, तो आपका जो बैंकर है वो बैंकर का पास जाके पढ़ो परदेश स्कीम के फॉर्म फिलअप करके उनको दिखाएगा, तो उसमें वो बैंक लोन देगा। और जो इंटरेस्ट है आपका पढ़ो परदेश में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंक को देगा। प्लीज रिमेंबर,
अगर और इसमें जो है अपर लिमिट जो है, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो अपर लिमिट है ये 6 लाख रुपीज है। अपर लिमिट जो है 6 लाख रुपीज है पेरेंट्स का इनकम का। जो 6 लाख रुपीज अगर पेरेंट का इनकम है, उसके नीचे है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं क्या बोला, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, अब आगे 6 लाख पढ़ो प्रदेश के लिए। इसमें इतना करना है कि आपको ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करना है और आपको उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वहां से डॉक्यूमेंट निकाल के लाना है, और उसके बाद बैंक, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक से लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद वो इस स्कीम में आप रजिस्टर्ड करेंगे पढ़ो प्रदेश में, वो लिंक इधर दिया है, आप देख रहे हैं जो लिंक है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आएगा। तो व्हाट विल हैपन, आप पढ़ते रहेंगे, गवर्नमेंट इसके इंटरेस्ट देता रहेगा, और आप आने के बाद मोरेटोरियम पीरियड है 1 ईयर, आपके बाद आप आके पेमेंट कर सकते। और एक सेशन है, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, स्क्रीन को मैं ये कर देता हूँ, ये कहते हैं वो वाला दिखाते हैं थोड़ा सा, जो HDFC बैंक का है, एक HDFC बैंक का है। कोरोना, ये माइनॉरिटी नहीं है, जनरल के लिए है, लेकिन हम लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना के बाद अभी HDFC बैंक जैसे एक बैंक में, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, HDFC बैंक परिवर्तन कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021। इस स्कॉलरशिप प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्लाइड जाइए, जो है अप टू 75,000 स्कॉलरशिप मिल सकता है, अप टू इस साल के लिए, सिर्फ अभी जो है सिर्फ इस साल के लिए। और इसमें किसको दे रहे हैं, जिसका फादर मदर का, जो अर्निंग मेंबर का डेथ हो गया है और कोई बेरोजगार हो गया, उनका फैमिली के लिए ये मिलेगा, 1 साल के लिए इससे मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ से मिल जाता है, कोई अगर कोविड विक्टिम है तो उसको यहाँ आप टाई अप कर सकते, तो शी विल गेट अप टू 15,000 to 75,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। और मेडिकल वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा होगा तो 75,000 1 साल के लिए हो देंगे। क्लास 1 to 12, हाँ यहाँ पे है, बैक क्लास 1 to 12 जो है उसके लिए सबसे कम जो है 15,000 रुपये, और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो 75,000, 75,000। नेक्स्ट। और इसलिए ओपन है, एलिजिबिलिटी है, वन शुड बी इंडियन नेशनल स्टूडेंट, जो है मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12, स्टूडेंट हु हैव बीन through any of the below 2 categories, student who lost either or both of their parents earning members since January 2020, or student whose earning family members lost their employment livelihood during the pandemic. Annual family income must be less than or equal than 6 lakhs rupees. Children of employees of HDFC Bank also will get this benefit. So we can stop the share screen now. We can have a question answer session straight away. Thank you so much, sir, for leading in this wonderful session of what are the scholarships for the minority or Christian people has been given by the government or state, central government, and how we can apply for that. There are some questions. Yes. First question is that we have how to get minority certificate. First question is that, and second one, how to change our religion. These are the two questions. Yeah, very important question. Because to get that, you need to be certified as minority, and religion has to be as per the requirement. So minority certificate is not issued by the government, except in state of Maharashtra, some pocket they have been using. Otherwise, even Rajasthan also for some times. Now they are not used. So उसके लिए minority certificate की स्टार्ट नहीं चाहिए, आपको सेल्फ अटेस्टेड रिलीजियस देना चाहिए कि आई बिलोंग, आपका पास्टर का एक दे देगा कौन सा चर्च का है, and you give a self attestation that my religion is so and so. Now to prove that you are a minority, your school record will prove that you are a minority. Your principal will say that as per the admission record, when the principal attests, your religion is mentioned in the school record. So a minority, that religious tag, there is no minority status issued in this country to the persons, but it is issued to the institution. Under Article 31 of the Constitution of India,
The NCMI, the National Council of Minority Education Commission in Delhi, they issue the minority certificate. Schools को देते हैं, कॉलेज को देते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस देते हैं. लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट, कोई बस है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कोई पर्टिकुलर स्टेट में देते, लेकिन कुछ साल के लिए राजस्थान में दिया जाता था, महाराष्ट्र में दिया जाता था, जो मेरा नॉलेज में है. बट जो आपका इस फॉर्म फिलअप के लिए माइनॉरिटी की जरूरत है, उसके लिए मेरे ख्याल से जो आप सर्टिफिकेट देंगे सेल्फ अटेस्टेड, और प्रिंसिपल उसमें सर्टिफाई करेगा. अगर आपका स्कूल रिकॉर्ड में आप माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, तो दैट इज एनफ. इसके लिए पहले क्या होता था, 4 साल पहले इसके लिए एफिडेविट देना पड़ता था. तो आज एफिडेविट की जरूरत नहीं, सेल्फ अटेस्टेशन है, टू मेक द प्रोसीजर इजी. क्योंकि इसमें एक क्लॉज है, अगर कोई हेराफेरी करके पैसा लगा, फ्रॉड करके लगा, कुछ मटेरियल सप्रेस करके लगा, इफ यू टेक दिस वे, इट विल बी रिकवर्ड एंड विल बी पनिश्ड पेनली बाय इंडियन पेनल कोड, जेल होगा. तो इसीलिए कोई गलत चीज तो नहीं होगा. जो आप सेल्फ सर्टिफाई करेंगे तो आप सही लिखेंगे कि दिस इज करेक्ट, माय रिलीजन इज नंबर 1. इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, फिर दूसरा में जाएंगे. इसी से रिलेटेड है सर, मोस्ट ऑफ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, so you can club in that. Most of us are belongs to first generation believers, and in government records still we comes under the Hindu religion. What is the proper solution for this issue? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को मैं टुगेदर आंसर करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज ए पेरिनल प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया. क्योंकि हर स्टेट में कन्वर्सन लॉ नहीं है. सिर्फ गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, अभी यूपी में आया. इसको छोड़ के बाकी इंडिया में कोई स्टेट में नहीं है आज के दिन पे. तमिलनाडु में आया था, वो खत्म हो गया. तो जहां पे रूल नहीं है वहां के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिंपल प्रोसीजर में आपको बताऊं. लेकिन जो स्टेट में रिलीजन मतलब रूल्स है और एक्ट है, यू हैव टू फॉलो द एक्ट. कन्वर्शन के लिए एक्ट है कि आपको जो है उड़ीसा में अगर और छत्तीसगढ़ में है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो यू हैव टू इंटीमेट. नो परमिशन इज रिक्वायर्ड इन इंटीमेट. लेकिन आज के दिन पे मध्य प्रदेश है या आपका जो हिमाचल प्रदेश में अभी जो चेंज हुआ है और गुजरात में, उसमें कलेक्टर से परमिशन लेने का है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आई एग्री विथ यू. और उसको चैलेंज भी किया गया है हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में. और हम लोगों ने EFI के साथ मिलके हम फाइल किए थे हिमाचल प्रदेश में भी, इसकी चैलेंज करके पहला वाला. और हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दिया कि भाई ये इंडिपेंडेंट राइट है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, और उसको व्हाई शुड ए पर्सन टेक परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर टू गेट कन्वर्टेड. तो हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया. तो अभी जो है ये चल रहा है प्रोसेस. आप जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम कितना देर लगता है. हर स्टेट में फाइल हुआ है, जहां जहां ये लॉ आया है उसको फाइल हुआ है. लेकिन अगर इस स्टेट में आप नहीं है, जो स्टेट में बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, अगर इस स्टेट में आप नहीं है, तो आपके लिए सिंपल तरीका है कि आपको एक जो कन्वर्ट होना चाहते हैं उनसे एक एफिडेविट आप लेकर आस्क हिम टू गिव ए डिक्लेरेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट सेइंग दैट चर्च में रिक्वायरमेंट है, कानून में रिक्वायरमेंट नहीं, चर्च की रिक्वायरमेंट है कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं. 2 साल से आप प्रभु मसीह को जानते हैं, चर्च आ रहे हैं, और मैं टीवी से, यूट्यूब से प्रभु का वचन सुना, मिरेकल देखा, मेरा मन परिवर्तन हुआ, मैं चर्च में गया, चर्च में हमारा क्लासेस हुआ, अब मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ. और ये एफिडेविट में देता हूँ, किसी का कोई दबाव में नहीं है, प्रेशर में नहीं है, और कोई फ्रॉडुलेंट বা कोई अलर्मेंट नहीं है, फ्री ऑफ माइंड में मैं एफिडेविट दे रहा हूँ. जब ये पादरी साहब के पास आएगा, चर्च के पास आएगा, उससे हैंडराइटिंग में आप जरूर लिखवाएगा कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, मेरा अरेंजमेंट बैप्टिज्म कीजिए. सिग्नेचर भी लीजिए, उसमें आधार कार्ड नंबर जरूर डालिएगा, फोटोग्राफ और आधार कार्ड जरूर डालिएगा, और फिंगरप्रिंट जरूर डालिएगा. एक केस हमारे पास अभी आया, वो दस्तखत करके चला गया, थाना में बोलता है ये सिग्नेचर मेरा नहीं है. अब सिग्नेचर एक्सपर्ट वो अगर मेंटली माइंड करके हल्का से लिख के दिया, दूसरा नाम लिख दिया, कोई देखा नहीं, तो इसीलिए फिंगरप्रिंट लेना जरूरी है आजकल दिन में हम लोग, क्योंकि आजकल वही लोग आते हैं वो केस बनाने के. तो फिंगरप्रिंट भी आप ले सकते हैं, आधार कार्ड जरूर रखिएगा, फोटोग्राफ जरूर रखिएगा. एफिडेविट के बाद आप जो है आप इनको धर्म परिवर्तन कर सकते हैं. और जो स्टेट में जो कानून है, अगर
इंफॉर्मेशन देना है 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, या छत्तीसगढ़ में आज के दिन पे भी है कि भाई इंफॉर्मेशन देना है बैप्टिज्म का 15 दिन का बाद, 1 हफ्ते का बाद। तो कहीं प्रायर इंफॉर्मेशन है, कहीं पोस्ट इंफॉर्मेशन। जिस स्टेट में जो कानून है उस हिसाब से आप कीजिएगा, बट फॉलो द लॉ ऑफ द, जो कानून है उसको फॉलो कीजिएगा। अगर तीसरा जो क्वेश्चन आप इसका साथ मिला हुआ है, अगर आपका हो गया है, धर्म परिवर्तन किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, तो आप जरूर जो है लीगल प्रोसीजर फॉलो कीजिए। यू गिव एन एफिडेविट एंड चेंज द रिकॉर्ड, मेक एन एफिडेविट दैट आई हैव बीन चेंज्ड माय रिलीजन फ्रॉम एक्स रिलीजन टू वाई रिलीजन, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दे दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो सर्विस बुक में चेंज करवा दीजिएगा। जैसे हम नाम परिवर्तन करते हैं, है ना, नाम चेंज करते हैं, मेरा नाम बीडी दास है, अगर मैं बीडी मिश्रा करूंगा तो मुझे एफिडेविट देना पड़ेगा, और उसके बाद मैं एक छोटा सा न्यूज़पेपर में दे दूंगा, आज से मैं बीडी मिश्रा होके जाना जाऊंगा, बीडी दास नहीं, है ना। सो दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट, यू हैव टू मेक ए डिक्लेरेशन दैट यू हैव चेंज योर रिलीजन, चाहे उस स्टेट में कानून है नहीं है, लेकिन आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इसको जरूर चेंज कीजिए। Thank you so much, sir. There is another question. Sir, is there any upper age limit for getting the scholarship? Suppose one wants to apply for MTH, will they qualify for a scholarship if they are older in age? No upper limit is there after post metric. प्री मैट्रिक तक है, 18 इयर्स तक है प्री मैट्रिक, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक तक कोई, उसका बाद जितना कोर्स है कोई अपर लिमिट नहीं, किसी भी एज में आप डाल सकते। क्योंकि यूजुअली जो एमटीएच करने जाते हैं, बीडी करके, सर्विस करके, पढ़ाई करके, एमटीएच करके फिर जाते हैं, तो एज तो ज्यादा ही ज्यादा होगा। कोई ऐसे कानून में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अपर लिमिट नहीं। One minute, sir. एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे तो मैं नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। If the students change their school, can they will get minority scholarship in districts? यस, ओनली स्टेट चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड चेंज नहीं होगा, स्कूल चेंज हो सकता है, स्कूल चेंज होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसको आपको ऑनलाइन जाके पोर्टल में चेंज करना है। और वो आपका स्कूल कौन चेंज करेगा, ये लिंक जाता है, हर स्कूल के पास लिंक है, दे कैन चेंज, कि जब टीसी देते हैं तो इसका नाम काट के दे देते हैं, दूसरा स्कूल उसको इंक्लूड करेगा। Sir, if you take minority scheme session for business people also, it will be good. There is a suggestion or request. No, I will suggest that you people should take this material. You take this material and let the EFI coordinate to make resource person, because see, this is not the end. I am only telling the iceberg. There are so many scholarships are available. Please, रात में जब मोबाइल देखते हैं ना, इसी चीज को देखिए, दूसरा चीज मत देखिए, तो आशीष बहुत आएगा। What happens to children who are being homeschooled from the beginning? होम स्कूल मतलब घर में ही पढ़ रहे हैं? नहीं, आज के दिन में कोई घर में नहीं पढ़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आ गया, नो स्कूल, नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट एट होम। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू ब्रिंग एवरी चाइल्ड ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन। और आज के दिन पे जो एनईपी 2020 आ गया, तो अभी जो है प्री स्कूल मतलब क्लास 1 से पहले जो है प्री नर्सरी, नर्सरी एंड अपर केजी जो है 3 पढ़ाया जाएगा। तो जो आंगनबाड़ी सिस्टम है वो अबोलिश हो जाएगा। तो आज के दिन पे कोई घर में नहीं पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा। घर में पढ़ने के लिए नया आ रहा है एनईपी में, वो आपको बाद में कभी बताएंगे, वो अलग चीज है, इसमें नहीं है, अभी वो आया नहीं। थैंक यू सर। Sir, what about medical scholarship for tribal student? Pardon? What about medical scholarship for tribal students? ट्राइबल स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ट्राइबल स्कॉलरशिप उनके लिए अवेलेबल है मेडिकल पढ़ने के लिए, ठीक है, और दूसरा है कि वो माइनॉरिटी का भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कोई स्टेट में ट्राइबल स्कॉलरशिप माइनॉरिटी से ज्यादा है तो उसको लीजिए, जहां पे ट्राइबल कम है माइनॉरिटी ज्यादा है वो ले लीजिए, एक ले लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ कि विदेश में जानते हैं गजपति में 3 जो है पढ़ रहे थे मेडिकल, ठीक है, वो सिलेक्ट हुए, उसको कोचिंग वगैरह दिया, सिलेक्ट हुए,
और उनका गवर्नमेंट में ट्राइबल है तो ऑलमोस्ट 50% फ्री है, ठीक है। बाकी जो है गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप जो है इनको 30,000 करके मिला। बाकी जो चर्च का सेना लीडर्स जो है वो कुछ रेज करके बाकी मेकअप कर दिए, बाकी 30,000, तो उनका 5 साल कंप्लीट करके वो डॉक्टर हो गए थे। सो योर कंट्रीब्यूशन, द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, यू नो, द होल थिंग विल मेक ए एंटायर थिंग फॉर चेंज। तो सिर्फ गवर्नमेंट का देने के लिए नहीं, आप भी कुछ इसमें दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। Okay, sir. Thank you. There is another question for regarding institution. If the institution it comes under minority, but they are not supporting minority scholarship, they have not updated their institution in minority portal, what to do? So देखिए, दो काइंड की इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब उनको आज के दिन पे जो है NCMA एक्ट, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इंस्टीट्यूशन एक्ट के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिल्ली से लेना है, NCMA कोर्स से, ठीक है। और उस कोर्स से मिला है कि अगर आप माइनॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन दिया गया, उस ग्राउंड पे दिया जाएगा कि आप जो है आपका जो बच्चे हैं कम्युनिटी का उसको पहले पढ़ाएंगे फर्स्ट। तो जितने आपका बच्चे आप एडमिशन करेंगे उस स्कूल में, कॉलेज में, आपको 100% लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिफ्यूज। अगर रिफ्यूज करते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द NCMA एक्ट से उस इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस ही चला जाएगा। देखिए कितना बड़ा सरकार ने अच्छा किया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कुछ बदल जाते हैं। जब हमारा माइनॉरिटी स्टेटस बदल जाता है, मिल जाता है, तो फिर हम माइनॉरिटी को भूल के मेजॉरिटी के साथ चले जाते हैं। बट जो आर्टिकल 30 हमको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, गवर्नमेंट जिसको बार बार कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई आप अपना बच्चों का ख्याल करो, आपका कम्युनिटी का बच्चे को ख्याल करो। हम लोग वो नहीं करते हैं। इसीलिए एक कानून लाया गया 2004 में कि इफ यू डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन ऑफ योर कम्युनिटी under article section 10 of the NCMA Act, your minority status will be cancelled. All benefit जो आपको मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। प्लीज आप लोग ग्रास रूट पे है, जहां पे कोई भी स्कूल है, कोई भी चर्च का है, उनको कानून दिखाइए। आप नेट से डाउन कर दीजिए, NCMA Act 2 पेज की है, 3 पेज की है, पढ़िए, सेक्शन 10 की पढ़िए। भैया आपको ये दिया गया है, आप पढ़ाइए, नहीं तो हम एक दरखास्त डालेंगे, आपका कैंसिल होगा। Okay, sir. Thank you so much, sir. Another question is there, sir. Did ST Christian get the minority benefit? हाँ, मैंने बोला ST का दोनों, चाहे इस तरफ भी है उस तरफ भी है, वो माइनॉरिटी ले सकता है या ST ले सकता है, कोई भी ले सकता है, लेकिन एक ले। He can take either ST or minority, not both. Okay, sir. What is SATS ID? SATS ID. वो क्या है? SATS ID. It's a question from Mr. Albert Costa. What is? तो एक स्लाइड में देखा ऐसा नाम? Yeah, SATS ID mentioned in the form. कौन सा फॉर्म है? Okay. So requesting brother Albert, pre-matric form बोला है सर। प्री मैट्रिक फॉर्म में क्या लिखा है? SATS ID। मुझे सर क्वेश्चन में दिया है सर, नीचे चैट बॉक्स में, यू कैन सी दैट। लेकिन मुझे पता नहीं है। जो Okay. पता नहीं है तो पता नहीं है। Can you send? Ask him to send me the form. Email Yes. me or WhatsApp me. मेरा email ID है bddas26@gmail.com। अगर वो फॉर्म भेज दे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। अगर फॉर्म भेजते तो मैं, आप थोड़ा टाइप कर दीजिए, मेरा मैं लिख देता हूँ इसमें bddas26@gmail.com। Can we get the mobile number of Advocate BD Das? मोबाइल नंबर नहीं, मैं सिर्फ ईमेल नंबर देता हूँ। We'll send the email ID of BD Das to
every participant along with the PPT. And please ask them to only ask question on this, not other issues जो पढ़ाया जाता है ना. तो कोई और पर्सनल इशू है तो उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, बट फॉर दिस क्लैरिफिकेशन दे शुड आस्क द क्वेश्चन, pertinent question. I'll clarify. I am from Nagaland. Can I get this minority scheme benefit? No, you are above 50%. Okay. I am from Hindu background. How should I change my community certificate from Hindu to Christian? And how should I make one for my children? Please guide. हाँ, ये है, पहले आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला फॉर्मेट एफिडेविट है, यू कैन टेक फ्रॉम ये फाइल, और उसका बाद चर्च में आप एप्लीकेशन देंगे आपका, उसका बाद जो है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट के साथ में विल राइट टू दी रेवेन्यू अथॉरिटी. हर स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहां आप देंगे करेक्शन के लिए. अगर स्कूल में है, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो स्कूल में आप जो है एफिडेविट के साथ एडमिशन रजिस्टर में रिलीजन चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्म में भी करेक्शन कर सकते हैं, और इसको आप जो है एफिडेविट को आपका पास रखिएगा तब हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. गवर्नमेंट को जरूर बताइएगा, अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट में सर्विस में चेंज कर दीजिए. अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहे तो रेवेन्यू ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस या जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी है आपका, वहां फाइल कर दीजिए फॉर चेंज ऑफ द नेम, रिलीजन, चेंज ऑफ द रिलीजन. सर एक सवाल है, इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, बट लेकिन इस प्रकार से सवाल पूछा गया है कि आजकल इलीगल और लीगल चर्च के बारे में बहुत कुछ चल रहा है. सो वो क्या है? देखिए, मैं इसका क्या आंसर दूं. इलीगल लीगल मैरिज जैसे होता है, ऐसा है. आपको ज्यादा पता है मेरे से कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है. तो लीगल चर्च बोल के कोई चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई कानून नहीं है कि एक चर्च होने से उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए लीगल होने के लिए. ऐसे कहीं पे कानून नहीं, कोई कानून नहीं. ये तो हम सिर्फ जो इनकम टैक्स से सेव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, और एफआईआर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं चर्च का, वो पर्पस के लिए. लेकिन चर्च नेसेसरली कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि चर्च इज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी. कलीसिया है, भक्तों की संगति, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इट इज द आईटी वर्ड, सेक्शन 11 में पढ़िएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉट वेदर कॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड, चाहे रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड. चर्च के लिए रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं है. लेकिन आज जो है केरला चर्च बिल जो आया है उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर रहे हैं, ठीक है. अब जो है, आप अगर देश की पहला नेशनल लॉ कमीशन का रिपोर्ट पढ़ेंगे 1948 का, 48-49 का, तो वहां भी मेंशन हुआ है कि churches are registered in Northeast in Society Act. How can a church be a society under the meaning of the Society Act? तो इसीलिए the government should think and make a rule. पहले से है, but nobody has done it. Nobody has done it. So in our considered opinion, the church should be registered under the Trust Act because it is a religious trust doing the religious activities for the purpose of maintaining the fund and registration and legal entity. और उसके लिए, और अगर आप चर्च का जमीन बना के खरीद के चर्च बिल्डिंग बना रहे, लीगल बिल्डिंग जो बता रहा हूँ चर्च का, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए. एक्सेप्ट तमिलनाडु, इंडिया में हर स्टेट में आप जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जमीन में नहीं करना, एसटी लैंड में नहीं करना, एससी लैंड में नहीं करना, और फॉरेस्ट लैंड में नहीं करना, ट्राइबल लैंड में नहीं करना. ये है कानून का रुकावट. तमिलनाडु में आपको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, आज पर वेणुगोपाल कमीशन रिपोर्ट 1986. तो इसीलिए बाकी भारत में कहीं पे चर्च बनाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है. ओनली थिंग, आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो चर्च के लिए आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने नाम पे मत खरीदिएगा, आप बनाइए कि हम चर्च के लिए खरीद रहे हैं. रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चर्च के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए. जब परमिशन लाते हैं तो चर्च बिल्डिंग के लिए परमिशन लाएं, कन्वर्ट कीजिए लैंड को. क्योंकि देखिए, एक चीज आप याद कीजिए, आप चर्च बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो जमीन जो है खेती है, जहाँ पे खेती होता है, स्टाटस है, लेकिन वहां चर्च बना दिए, तो आपका काम है कि जमीन को पहले कन्वर्ट करके उसको बनाना है रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है. तो एक जो है चर्च जो है पब्लिक प्लेस है, तो एक कमर्शियल एक्टिविटीज होता है,
एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, एक पब्लिक एक्टिविटी होता है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, ये सारे पब्लिक एक्टिविटी। उसका कन्वर्शन करना है लैंड को, चर्च बिल्डिंग बनाना है, वो लीगल है, बाकी जितना है वो लीगल है। Thank you, sir. I have no below poverty line card. Can I submit income certificate, sir? Yes, why not? Sir, I want to do PhD. My age is 30 years. So is there scholarship for me, please? I have SC caste certificate, Madhya Pradesh, Abdul Kalam University, but I am from West Bengal. Now I am doing Jesus Ministry. If you are, क्योंकि PhD करने के लिए today the law is separate. You have to clear the entrance test. Exam पहले तो कोई भी PhD कर सकता था, research कर सकता. Today you have to give the entrance examination and pass. If you are selected, you can do the PhD. और PhD के लिए जो scholarship है वो आपको मिल सकता है. No problem. Okay, sir. There is a question from Brother Lazarus from Karnataka. Sir, can SC converted to Christianity comes under Cat 1 in Karnataka? Can be a I'm going to move my cursor. हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इतना ना और कुछ है आगे पीछे? आगे सर वो मेरा कर्सर थोड़ा सा इश्यू हो रहा है. Yeah. अच्छा. Sir, can SC converted to Christianity comes under Cat 1 in Karnataka? Can he claim the minority facilities from the state and central government? See, if SC Hindu is getting converted to Christianity, following due process of law, that is filing the affidavit, giving a declaration, and correcting the revenue record, then you can get the minority structure. You have to follow the law. Okay. Thank you, sir. There is another question. I am a Christian wanting to do study abroad. My internship for 6 months will be able to get help. See, as I said already, Padho Pardesh scheme details you go. Padho Pardesh link also I will be giving today. The whole thing I'll give. So the link is there. You click the link. They have given so many courses there. जो भी आपका पढ़ाई करना है, mostly it will suit to you. And if you are selected by the university there in abroad, and you apply loan with the bank which you are acquainted, आपका बैंक जो है SBI है, HDFC है, ICICI है, अब वहाँ अप्लाई कीजिए, जो फॉर्मेलिटी लोन का है वो बैंक वाला करेगा, डॉक्यूमेंटेशन, बाकी इंटरेस्ट पार्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा बैंक ए, और आप आने के बाद बाकी पैसा वापस करेंगे जितना पढ़ाई के लिए लेंगे. You have to return those money to them after you come back study. Only thing, two condition, that your parents' income or your income should not be more than 6 lakhs in a year. Number one. Number two, that you are selected by the abroad university and you have a document for that. Number three, you qualify by the bank to take the loan. If this is qualified, then the central government will pay the interest for this. Thank you, sir. There is another question. If the child have Christian religion in school, still have to make a minority certificate? No, not necessary. That's what I said. Once your school record says you are minority Christian, no more further requirement is there. The principal will give a certificate, that is enough. That's all. Because that is in the national portal now. All the state government has asked the private school also to enter all the data of the children in their website. What are the institution is eligible that we could study abroad, biblical studies? I have no idea. You have to go through Padho Pardesh, and I don't know whether for religious study they give the PhD scholarship. That is for academic purpose.
But for post matric scholarship, there is a BTS, BD, MTS they're giving. But Pada Pradesh, if I am not sure, you go through the document online, you will come to. If SC become a Christian, can I apply for SC quota? No. Simple answer, no. Okay. We are almost done. Any questions, sir? Okay. My daughter wants to go to abroad for study. It is possible, sir? Yes, it is possible. Pray to God. She is selected by the university. Talk with the bank. Make the document correct. And apply. Okay. Central government will give you the interest. Be assured about. Okay, there is a one question. Sir, I can do from state from Arunachal Pradesh. My son studying class 9 and I want to study MTech degree. So I get, sir, please. Pardon? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल था. दोबारा पढ़ लीजिए. चले गया. Okay. I am from Arunachal Pradesh. I am from Arunachal Pradesh. My son studying in 9th class and I want to do MTH. So I'm unable to get the question what they want to ask, sir. I want to study MTH, that's all. Okay. Okay. Any questions? किसी का रह गया तो प्लीज पूछ सकते हैं. अगर किसी का क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया है तो प्लीज वापस पूछ सकते हैं आप लोग. If not, then we'll conclude our webinar or Zoom meeting over here. Okay, please create WhatsApp group for further discussion and docs if possible. Yes. Any minorities? एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो आज का पीपीटी है उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट करके गूगल ड्राइव में रख रहे हैं और चैट बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं. So everybody can download. No need of sending. Very good. Thank you, sir. Okay. So once again, अगर कोई सवाल नहीं है तो we'll conclude over here. Okay. Is there any time limit to get help from the government? The same. टाइम लिमिट है 15 नवंबर है आपका प्री मैट्रिक के लिए. पोस्ट मैट्रिक बाकी जो है मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप ये सारे 31 नवंबर. ओके. सो थैंक यू सो मच सर. एडवोकेट बिडिदास सर, आपका हम तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ EFI और जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े थे, just want to share almost 625 people have registered themselves. Praise God, praise God. And this is not, it should be 5,000. 5 इंची रोटी मछली दो तो इसके खिलाफ नहीं, सही में बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं. जी जी. और ऑलमोस्ट 200 लोग पार्टिसिपेंट किए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं एडवोकेट बिडिदास सर का कि हमेशा मसीह समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, कलीसिया के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं. और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को हमारे साथ बांटा, अपने अनुभव के साथ. और जो भी माइनॉरिटी की स्कीम्स मसीह समाज के लिए उपलब्ध है आज, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, बताया और पीपीटी के द्वारा. और वो भी प्रेजेंटेशन आज हमें वो देकर जा रहे हैं. उसके लिए हम एडवोकेट बिडिदास सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर. थैंक यू सो मच. और उसी प्रकार से मार्टिना जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन में सर की सहायता करी, हमें इन सारी चीजों को उपलब्ध करा दिया. इसलिए हम मार्टिना जी का भी धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी सर रेवरेंड विजेश लाल जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएटिव लिया, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में.
उनके गाइडेंस में सारा वेबिनार हो सका, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ EFI की टीम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रमोट करने में, ऑर्गेनाइज